السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں جی ٹی وی نیوز۔ میں ہوں ساجد حسن اور میں ہوں جویریہ علی۔ بلٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے یوم یکجہتی فلسطین کے حوالے سے۔ پاکستان بھر میں آج فلسطینی عوام سے یکجہتی کا دن منایا جائے گا۔ مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی جارحیت کے خلاف پوری دنیا سراپا احتجاج ہے۔ پاکستان کی تمام مذہبی اور سیاسی جماعتیں حکومتی سطح پر فلسطینیوں سے محبت کا اظہار کریں گی۔ وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر آج 21 مئی بروز جمعہ یوم یکجہتی فلسطین منایا جائے گا۔ فلسطینی ماؤں، بہنوں اور بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے ملک بھر میں ریلیاں نکالی جائیں گی۔ پاکستان کی قومی اسمبلی میں فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے قرارداد بھی منظور کی جا چکی ہے۔ فلسطین میں اسرائیل کے غاصبانہ قبضے کے خلاف نماز جمعہ کے بعد بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ ملک کی تمام مذہبی اور سیاسی جماعتیں اپنے تمام سیاسی مقاصد کو بلا کر فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کریں گے۔ رمضان المبارک اور عید الفطر کے دوران فلسطین میں پرتشدد واقعات کے تسلسل سے پوری امت مسلمہ دل گرفتہ ہے۔ نہتے فلسطینیوں پر اسرائیلی ظلم و ستم کے خلاف پاکستان اور ترکی نے مشترکہ طور پر آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا اور اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں دونوں ممالک کے وزراء خارجہ نے عوام کے دلوں کی ترجمانی اور مظلوم فلسطینیوں کو یقین دلایا کہ امت مسلمہ ان کی سیاسی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گی۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ OIC اجلاس میں 57 اسلامی ملکوں کی نمائندہ تنظیم نے نہ اقتصادی بائیکاٹ کی بات کی، نہ کسی اور ایکشن کا مطالبہ کیا، بلکہ فلسطین پر اسرائیلی بمباری اور وحشیانہ حملوں کو ایک روایتی قرارداد منظور کر کے نمٹا دیا گیا۔ اسرائیل عالمی سرپرستی میں غزہ میں مظالم ڈھا رہا ہے۔ فلسطین پر مظالم ڈھانے والوں کو کوئی پوچھنے والا نہیں۔ سلامتی کونسل کی قراردادوں پر فوری عمل درآمد کرایا جائے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مطالبہ کر دیا۔ کہتے ہیں کہ اسرائیل اپنے غرور اور تکبر سے فلسطینیوں پر حملے کر رہا ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ اسرائیلی مظالم روکنے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔ اسرائیلی جنگی جرائم کو احتساب سے بالاتر نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم کچھ کرتے ہیں یا نہیں تاریخ میں لکھا جائے گا۔ یروشلم کی حفاظت کے لیے عالمی فورس بنائی جائے۔ Driven by arrogance and emboldened by impunity, Israel has mounted a relentless onslaught on the occupied and beleaguered people of Palestine. In 1 week of Israeli attacks, over 250 Palestinians have been killed and thousands injured. Our first priority must be to halt the Israeli aggression. I hope that even at this 11th hour, the Security Council will call for a cessation of Israeli attacks. If it fails to do so, the General Assembly must make this demand on behalf of the entire international community. فلسطین کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ہنگامی اجلاس میں عالمی طاقتوں کا ضمیر جھنجھوڑا گیا۔ صدر UN جنرل اسمبلی نے کہا کہ مغربی کنارے میں جاری تشدد کو روکنا ہوگا۔ انتونیو گوتریس نے جنگ بندی اور ایمرجنسی کے نفاذ کا مطالبہ کیا۔ ترک وزیر خارجہ نے صہیونی مظالم کی تصاویر دکھائیں۔ فلسطین کی صورتحال پر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا ہنگامی اجلاس ہوا۔ عالمی رہنماؤں نے صہیونی مظالم کو اجاگر کیا۔ UN جنرل اسمبلی کے صدر والکن بوزکر نے کہا کہ اسرائیل اور فلسطین کے تنازع کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ مغربی کنارے میں جاری تشدد کو روکنا ہوگا۔ We have witnessed the worst violence in years. Hundreds of innocent lives have already been taken. The suffering is immense. It is inhumane and simply unbearable. UN سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس نے اسرائیل سے جنگ بندی اور ایمرجنسی کے نفاذ کا مطالبہ کیا۔ Also in clear violation of international humanitarian law.
densely populated civilian areas must not be used for military purposes. But above all, what we must, and I am repeating my appeal, what we must achieve is an immediate ceasefire. फलस्तीनी वजीर खारजा ने सलामती कौंसिल से फलस्तीन पर जारी इसराइली बर्बरियत फौरी खत्म कराने की दरख्वास्त की। कहा, मासूम और निहत्ते शहरियों को जाहिरियत का निशाना बनाया जा रहा है। तुर्क वजीर खारजा ने खिताब के दौरान सेहूनी मजालिम की तस्वीर दिखाई। कहा, इसराइल फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। गजा के निहत्ते फलस्तीनियों पर इसराइली बर्बरियत बंद होनी चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की अपील पर मुल्क भर में आज मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए यौम फ़लस्तीन मनाया जा रहा है। मजलूम फ़लस्तीनियों से हिमायत में सियासी और समाजी और मजहबी जमातों ने भरपूर तरीके से एहतजाज करने का ऐलान किया है। रिपोर्ट कर रही हैं लाहौर से रिजवाना शेख। अर्ज़े फ़लस्तीन फ़लस्तीनियों पर ही तंग कर दी गई। इसराइली मुज़ालिम के खिलाफ मुल्क भर में सियासी, समाजी और मजहबी जमातों और तमाम शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने एहतजाज की हमायत का ऐलान कर दिया। नमाज जुम्मा में मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए खसूसी दुआएं भी की जाएंगी। लाहौर में अंजमन ताजरान डॉक्टर एसोसिएशन भी सड़कों पर होंगे। तुलबा कहते हैं कि क़िबला अव्वल की हिफाजत के लिए उम्मत मुसलमा को अमली किरदार अदा करना होगा। गाजा के सपोर्ट में, फ़लस्तीन के सपोर्ट में निकले हैं। हम सबसे रिक्वेस्ट है कि हम सबको इनकी सपोर्ट में बाहर आना चाहिए। फ़लस्तीनियों की हमायत में पूरी कौम मुत्तहिद है। अवाम ने वज़ीर आज़म इमरान खान से अपील की है मसला फ़लस्तीन को आलमी सतह पर मुयस्सर अंदाज में पेश किया जाए। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ रिजवाना शेख, GTV न्यूज़ लाहौर। और लाहौर की तरह ही कराची में भी रीगल चौक से कराची प्रेस क्लब फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती और इसराइल मज़ालिम के खिलाफ सिविल सोसाइटी और नौजवान कराची के ज़ेर एहतमाम रैली निकाली गई। फ़लस्तीनियों पर इसराइली मुज़ालिम के खिलाफ कराची में एहतजाज। रीगल चौक से दाऊद पोता रोड, फुआरा चौक से रैली कराची प्रेस क्लब पहुंची। शुरका ने इसराइली मुज़ालिम पर आलमी बेहिस्सी को इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दिया। अब तक के इसराइल 2500 से ज्यादा लोगों को मार चुका है, जिसमें छोटे बच्चे और बुजुर्ग औरतें और खवातीन भी शामिल है। यूनाइटेड नेशन क्यों खामोश है? इसराइल इंटरनेशनल लॉज की क्या कहते हैं, कब तक क्या वायलेशन करता रहेगा? रैली में शरीक खवातीन ने मजलूम फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती करते हुए इसराइली बर्बरियत की मज़म्मत की। हम यहाँ पर किसी कौमियत से बालातर होकर सब यहाँ पर इकट्ठे फ़लस्तीनी अवाम को, फ़लस्तीनी कौम को ये दिखाने के लिए कि हम उनके साथ हैं। उनकी तकलीफ का हमें बहुत अच्छे से एहसास है और उस जुल्म और बर्बरियत के खिलाफ हम लोग आज यहाँ खड़े हैं। रैली के शुरका फ़लस्तीन जिंदाबाद, इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगाते रहे। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर वसीम हैदर के साथ हिरा जकी, GTV न्यूज़ कराची। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने अहले कराची से मजलूम फ़लस्तीनियों की हिमायत में सड़कों पर आने की अपील कर दी है। कहा है कि अगर हम खामोश रहे तो इसका मतलब होगा कि हम जालिम के साथ हैं। जुल्म बढ़ता जा रहा है। हम कश्मीर के जुल्म के रहते थे, अब हम फ़लस्तीन के जुल्म को भी रो रहे हैं। हमारी इस दुनिया की माएँ, बहनें, बच्चे, उनको शहीद भी किया जा रहा है और बेकसूर मारा भी जा रहा है। हमारी खामोशी इस बात का इंदिया होगी कि हम जालिम का साथ हैं और हम जालिम का कभी साथ देने को तैयार नहीं हैं। आइए निकलिए और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाइए। कल मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब निकलेंगे, सड़कों पे आएंगे जुमे की नमाज के बाद और जालिम को साबित कर देंगे कि अभी हमारा ज़मीर मरा नहीं है। हम एक ज़िंदा कौम है और एक ज़िंदा कौम के होते हुए हम ये साबित करेंगे कि हम हक़ और इंसाफ के लिए हर वक्त हर जगह मौजूद होंगे। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम शुहदा मना रहे हैं। 1990 में भारतीय फौज ने मकबूल कश्मीर रहनुमा मीरवाइज मौलवी उमर फारूक और उनके जुलूस जनाजा में शरीक 70 कश्मीरियों को बेदर्दी से शहीद कर दिया था। 21 मई 2002 में अब्दुल गनी लोन को शहीद किया गया।
کشمیر کی تاریخ میں 21 مئی اہم دن بن گیا ہے۔ اس دن کشمیریوں نے 2 رہنماؤں کو کھویا۔ 1990 میں میر وائز مولوی عمر فاروق کو بھارتی فوج نے بے رحمی سے شہید کیا۔ جلوس جنازہ میں فائرنگ سے ہاول میں 70 کشمیریوں نے جام شہادت نوش کیا۔ کشمیری ہر سال 21 مئی کو یوم شہداء کے طور پر مناتے ہیں۔ کشمیریوں کا زخم 2002 میں پھر ہرا ہو گیا جب 21 مئی کو بھارتی فوج نے فائرنگ کر کے کشمیر کی تحریک آزادی کی آواز عبدالغنی لون کو 2002 میں شہید کر دیا۔ مولوی عمر فاروق اور عبدالغنی لون کی شہادت سے تحریک آزادی کو نئی زندگی ملی۔ کشمیری ہر سال اپنے شہداء کی یاد مناتے ہیں اور بھارت سے مکمل آزادی کے حصول تک جد و جہد جاری رکھنے کا عزم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ملک بھر میں یوم انہضام جنت البقیع کے حوالے سے ریلیاں اور احتجاجی مظاہرے کیے گئے۔ مظاہرین نے جنت البقیع مزارات کی تعمیر نو کے لیے حکومت سے سعودی حکومت پر دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کیا۔ اہل بیت اور صحابہ کرام کے مزارات کے انہدام کے خلاف ملک بھر میں یوم جنت البقیع منایا گیا۔ کراچی پریس کلب کے باہر امامیہ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن نے مزارات کے دوبارہ تعمیر کے حق میں نعرے بازی کی۔ احتجاج میں خواتین اور بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ راولپنڈی میں یوم انہدام جنت البقیع کا جلوس امام بارگاہ ناصر العزا سے برآمد ہوا۔ جلوس میں بڑی تعداد میں عزاداروں نے شرکت کی۔ جلوس مری روڈ، کمیٹی چوک، اقبال روڈ سے ہوتا ہوا کرنل مقبول امام بارگاہ پر ختم ہوا۔ پشاور میں بھی یوم انہدام جنت البقیع منایا گیا۔ امام بارگاہ ماسٹر غلام حیدر خان سے جلوس برآمد ہوا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ جنت البقیع کی تعمیر کا مطالبہ بنیادی انسانی حقوق کا مسئلہ ہے۔ وفاقی حکومت سعودی عرب پر مزارات کی تعمیر نو کے لیے سفارتی دباؤ ڈالے۔ سندھ اسمبلی کے حلقہ پی ایس 70 ماتلی کے ضمنی انتخاب سے متعلق ووٹوں کی گنتی کا عمل مکمل ہو گیا۔ تمام 123 پولنگ اسٹیشنز کے غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق پیپلز پارٹی کے حاجی محمد حالی پوٹو بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے۔ پی پی امیدوار حاجی محمد حالی پوٹو کو 46,354 ووٹ ملے۔ جے یو آئی کے مولانا گل حسن 6,435 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے۔ حلقے میں ٹرن آؤٹ 25.44% رہا۔ ماتلی پی ایس 70 کے ضمنی انتخاب میں فتح پر پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری خوشی سے نہال ہو گئے۔ اپنے ٹویٹر پیغام میں بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے 123 پولنگ اسٹیشنز میں سے 122 پر فتح حاصل کی ہے۔ پیپلز پارٹی کی فتح موجودہ صورتحال سلیکٹڈ حکمرانوں کے لیے آئینہ ہے۔ پیپلز پارٹی عوام کے حقوق کے لیے لڑ رہی ہے۔ پی ایس 70 ماتلی کے ضمنی انتخابات میں پیپلز پارٹی کے تیر نشانے پر لگنے کے بعد کارکنوں کا جشن۔ ڈھول کی تھاپ پر کارکنوں نے بھنگڑے ڈالے جبکہ گلی محلوں میں مٹھائیاں بھی تقسیم کی گئیں۔ راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل کے شفاف طریقے سے تحقیقات ہونی چاہیے۔ وفاقی وزیر غلام سرور خان نے پروگرام مد مقابل میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میری اور زلفی بخاری کی رنگ روڈ پر کوئی زمین نہیں، ریکارڈ چیک کر لیا جائے۔ کلاسرا صاحب ایک پریس کانفرنس کر کے تو بڑی تفصیل کے ساتھ بڑا کیٹیگوریکلی کہہ چکا ہوں کہ رنگ روڈ کے سٹارٹنگ پوائنٹ سے لے کے اینڈ پوائنٹ تک نہ تو میری نہ میری اولاد کی نہ تو میرے خاندان کی ایک مرلہ زمین نہ خریدی نہ بیچی، اور نہ ہی رنگ روڈ میں ہماری زمین کوئی ایکوائر ہوئی۔ تو جنرل صاحب کے پاس اگر کوئی انفارمیشن ہے تو یہ ان کی مہربانی ذرا چیک بنوا کے مجھے بھجوا دیں۔ راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل سے متعلق سابق کمشنر راولپنڈی محمد محمود کے خلاف گھیرا مزید تنگ ہو گیا۔ ذرائع کے مطابق اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے محمد محمود کی نندی پور پاور پروجیکٹ میں بطور ایم ڈی تعیناتی کا ریکارڈ حاصل کرنے کے لیے پاور ڈویژن سے رابطہ کر لیا۔ پروجیکٹ میں محمد محمود کی تعیناتی اور انہیں عہدے سے ہٹانے کی تمام دستاویزات فراہم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے افسران نے پاور ڈویژن کے متعلقہ سیکشن میں تعینات حکام سے ملاقات بھی کی۔ کیپٹن ریٹائرڈ محمد محمود کو
शहबाज शरीफ दौर में बतौर MD नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट तैनात किया गया था। एहतसाब अदालत के हुक्म पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की 88 कैनाल 4.5 मरले अराजी की नीलामी का अमल मुकम्मल हो गया है। गुलाम अली खोकर की रिपोर्ट देखिए। शेखुपुरा फिरोज वटवा में साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की जायदाद की नीलामी म्यूनिसिपल हॉल में हुई। बोली शुरू की जाती है 70 लाख रुपया फी एकड़ सरकारी बोली है। नीलामी के अमल में 3 शहरियों मोहम्मद बूटा, सरफराज अहमद और खुर्रम वर्क ने हिस्सा लिया। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू डॉक्टर फैसल सलीम की सरबराही में कमेटी ने नीलामी के अमल की निगरानी की। 1 करोड़ 1 लाख रुपये फी एकड़ खरीदी है। 88 कनाल 4.5 मरले रखा है फिरोज वटवा दे विच जिहड़ा उन्हां दा मुश्तरका उहदे चों मैं शेयर खरीदा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की कुल 88 कनाल 4.5 मरला ज़रई ज़मीन की सरकारी कीमत फी एकड़ 70 लाख रुपए मुकर्रर की गई थी। ओपन नीलामी में ज़मीन फी एकड़ 1 करोड़ 1 लाख रुपए में फरोख्त हुई। हमें कोर्ट की तरफ से डायरेक्शन आई हुई है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कि जो रकबा है इसको नीलाम करके जो अमाउंट है वो सरकार के साथ जमा करवाई जाए। एहतसाब अदालत के हुक्म पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की अराजी को नीलाम करने का मरहला मुकम्मल हो गया। अदालत की हतमी मंजूरी के बाद जमीन की कामयाब बोली लगाने वाले मोहम्मद बूटा के नाम मुंतकिल कर दी जाएगी। वफाकी सरकारी तालीमी इदारों ने बंदिश में 6 जून तक की तौसी कर दी है। वफाकी निज़ामत तालीमात ने एलामिया जारी कर दिया। एलामिया के मुताबिक कोरोना मरीजों की शरह तकरीबन 6% होने की वजह से वफाकी तालीमी इदारों की बंदिश में तौसी की गई। 7 जून को इदारे खोलने से मुतालिक हतमी फैसला NCOC के 3 जून को होने वाले इजलास में किया जाएगा। मुल्क के मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर सिविल एविएशन अथॉरिटी के मुलाजमीन की कोरोना वैक्सीनेशन कराने का फैसला कर लिया गया है। सिविल एविएशन हुक्काम ने तमाम एयरलाइंस को सफ़र से कबल मुसाफिरों का डेटा ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करने की हिदायत की है। जावेद असगर चौधरी की रिपोर्ट देखिए। बैरून मुल्क खुसूसन खलीजी ममालिक से कोरोना मस्बत मुसाफिरों की पाकिस्तान आमद का सिलसिला जारी है। कराची एयरपोर्ट पर दुबई से आने वाले 6 मुसाफिर रैपिड एंटीजन टेस्ट के बाद कोरोना मस्बत निकले। 4 मर्द और 2 खवातीन मुसाफिरों को निजी होटल और कोरंगी सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। बैरून मुल्क से आने वाले मुसाफिरों में कोरोना की मौजूदगी के बाइस लाहौर और कराची एयरपोर्ट्स पर तैनात CA मुलाजमीन की वैक्सीनेशन कराने का भी फैसला किया गया है, जिसके लिए एयरपोर्ट मैनेजर ने DCO लाहौर और कराची एयरपोर्ट के ज्वाइंट डायरेक्टर ने तमाम शोबों को मरासला अरसाल कर दिया। मरासले के मुताबिक बजरिया शनाख्ती कार्ड रजिस्ट्रेशन कराने वाले तमाम मुलाजमीन की फहरिस्तें तलब की गई हैं। सऊदी एविएशन हुक्काम ने तमाम एयरलाइंस को मुसाफिरों की सऊदी अरब आमद से कबल कोरोना वैक्सीनेशन समेत सफरी डेटा ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करने की हिदायत की है। सऊदी शहरी और इस्तस्ना के हामिल मुसाफिरों पर ऑनलाइन पोर्टल पर डेटा इंदिराज की शर्त लागू नहीं होगी। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने फ़लस्तीन में ज़ख्मियों और बीमारों के लिए टेलीमेडिसिन का आगाज़ कर दिया। कोई भी मरीज इस वेबसाइट पर रजिस्टर होकर ऑनलाइन इलाज करवा सकता है। मजीद बताएंगे लाहौर से फ़कार शौकत अपनी रिपोर्ट में। सिर्फ बयानात नहीं, अमली इकदामात। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने फ़लस्तीनियों के लिए टेली मेडिसिन सर्विस का आगाज कर दिया। वाइस चांसलर प्रोफेसर जवेद अकरम ने फ़लस्तीनी जख्मियों और बीमारों के लिए ऑनलाइन खिदमात का ऐलान कर दिया। टेली मेडिसिन सेंटर हमने शुरू किया और यही हमारी टीम भी रवाना करेंगे। 1 नहीं 2 नहीं, हज़ारों डॉक्टर्स पाकिस्तानी जाएंगे और अगर कोई डॉक्टर अपनी जान भी वहाँ दे देगा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने मिस्र की सरहद पर आर्जी हस्पताल कायम करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से राब्ता किया है। प्रोफेसर जवेद अकरम का कहना था कि इस सिलसिले में तमाम मेडिकल तंजीमों ने हर मुमकिन तावन की यकीन दहानी कराई है। गवर्नर साहब के अंडर एक हॉस्पिटल इस्टेब्लिश करेंगे इजिप्ट में, मिस्र में, और वो बिल्कुल बॉर्डर पे है गज़ा के, और हमने पहले भी आज से 8 साल पहले भी वहाँ पे हॉस्पिटल इस्टेब्लिश किया तो, लेकिन अभी पाकिस्तान हॉस्पिटल इंशाल्लाह वहाँ इस्टेब्लिश हो। मगरबी किनारे के रिहायशी ऑनलाइन इलाज मुआलजे की सहूलियात से फायदा उठा सकते हैं। तमाम रजिस्ट्रेशन और डॉक्टरों की सहूलत फ्री फराहम की जाएंगी। कैमरामैन अवैस राजपूत के साथ वकार शौकत, GTV न्यूज़ लाहौर। कराची में डाकुओं ने शहरियों को कीमती अशिया से महरूम कर दिया। स्कूल यूनिफॉर्म में कम उम्र लड़कों की वारदात की फुटेज भी मंजर आम पर आ गई।
कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू हो गया है। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 में कम उम्र मुलजिमान ने स्कूल यूनिफॉर्म में वारदात की सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है। मुलजिमान ने स्कूल बैग भी पहने हुए हैं। अजीजाबाद मोहम्मदी कॉलोनी में क्लिनिक भी महफूज नहीं रहे। 2 मुसल्लह डकैतों ने 7 खवातीन से मोबाइल फोन और जेवरात छीन लिए। जाते जाते मुलजिमान लेडी डॉक्टर का पर्स और OPD के पैसे भी ले गए। कोरंगी नंबर 4 में 2 मोटरसाइकिलों पर सवार 3 मुलजिमान ने चंद सेकंड में मोटरसाइकिल छीनी और फरार हो गए। वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। खैबर पख्तूनख्वा के शुमाली इलाके खुदरत की बेशुमार रंगीनियों से मालामाल हैं। खूबसूरत और हसीन वादियाँ ऐसी जिन पर जन्नत का गुमां हो। रंगीनी, दिलकशी, रानाई और हुस्न के मफहूम को अगर समझना हो तो यहाँ जाना ज़रूरी है। मोहम्मद असद की रिपोर्ट देखिए। मुल्क खुदादाद पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में कुदरत के बेशुमार खूबसूरत, हसीन और दिलकश मकामात मौजूद है। इन हसीन वादियों में गुनगुनाते आबशार कायनात के फितरी हुस्न और जमाल का हकीकी मज़हर पेश करते हैं। अगर आपको रंगीनी, दिलकशी, रेनाई और हुस्न के मफहूम को समझना और उनका राज देखना हो तो इस वादियों का सफर लाजमी करें। ये दिलनशी मकामात ज़हनी, दिमागी और जिस्मानी तौर पर रूहानी सुकून के साथ दिलों में नई उमंग पैदा करता है। जो यहाँ का रुख करते हैं वो इन मुनफरिद मनाजिर में खोकर रह जाते हैं। यह खूबसूरत वादिया सतह समंदर से कई हजार फुट बुलंदियों पर वाक़या है। यहाँ के मकामी लोग सियाहत और सियाहों को सपोर्ट करते हैं, जबकि मिलन निसारी, मेहमान नवाजी और आजिज़ी भी उनकी खास शनाख्त है। मोहम्मद असद, GTV न्यूज़, नौशेरा। पाकिस्तान सुपर लीग के अबूजैबी में निकात से लाहौर कलंदर्स के CEO समीन राना खुश हैं। जी स्पोर्ट्स में बात करते हुए कहा कि अबूजैबी की विकेट कज़ाफी स्टेडियम जैसी है। लाहौर कलंदर्स को कंडीशंस का फायदा होगा। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है और बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इतने मुश्किल हालात के बावजूद ये UAE के अंदर उन्होंने ये सारा अरेंजमेंट करने में कामयाब हुए। वो अच्छी बात यह है कि अबू धाबी और लाहौर की जो कंडीशंस हैं वो सिमिलर है। यानी लाहौर जो अबू धाबी की विकेट्स की तैयारी में जो मिट्टी इस्तेमाल हुई है वो वही वाली मिट्टी है जो कि लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में है, और गद्दाफी स्टेडियम में लाहौर कलंदर का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे T10 भी होता है टूर्नामेंट जहाँ पे हमारी टीम पार्टिसिपेट करती है। तो ये मेरा ख्याल में सबके लिए सपोर्टिंग होगा। लाहौर को फायदा होगा उसकी फास्ट बॉलिंग की वजह से। मोमेंटम है जो हमारे साथ है। लास्ट मैच जो कराची को हमने हराया था कराची में, वो मेरा ख्याल में एक बहुत ही जबरदस्त और यादगार विक्ट्री है लाहौर।